क्वेश्चन था if a particle undergoes an acceleration of 2I minus 3j, I suppose, and velocity at the moment is 3I plus 4j, ऐसा लिया था. Find AT and AN. AT निकालना था, AN निकालना. So this was the question. Find AT and AN. बाद में वेक्टर फॉर्म में निकालना था. AT AN वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, मैग्नीट्यूड तो अपने आप आ जाए. There's a particle which is moving with some velocity. There's a particle which is moving with some velocity, 3I plus 4j, and has an acceleration of 2I minus 3j. What you are supposed to do is you are supposed to find AT vector and AN vector. चलो, नहीं किया था तो अभी ट्राई करो. डू इट. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है. मैंने कुछ हिंट्स भी दिए थे. I've given some hints. Like AT vector is a component of vector along the velocity, as velocity is tangential. Dude, AT vector is component of A vector on V vector. Chinmay, you tried that question? सर नहीं आया. चलो अभी ट्राई करो. बहुत क्लियर स्टेटमेंट लिख दिया मैंने. सी, एक्सेलरेशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं. नॉट अबाउट एक्स एंड वाई कंपोनेंट. द कंपोनेंट व्हिच एक्ट्स अलोंग द टैंजेंट एंड कंपोनेंट व्हिच एक्ट्स अलोंग नॉर्मल. बट वेलोसिटी भी तो टैंजेंशियल होती है. तो AT वेक्टर इज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग द टैंजेंट, दैट इज अलोंग वेलोसिटी. तो AT वेक्टर क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर ऑन V वेक्टर. तो बस आप रिजॉल्व कर लो. याद है कैसे निकालते थे? कंपोनेंट ऑफ AB वेक्टर ऑन CD वेक्टर. अभी रिसेंटली एक टेस्ट में दिया था मैंने. हाउ डू यू फाइंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर? सर प्रोजेक्शन. हाँ तो वही कैसे निकालते थे? प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर. क्या नहीं, क्या होगा? A dot B upon A dot B upon A dot B upon magnitude of B. मैग्नीट्यूड ऑफ V. लेकिन ये स्केलर आएगा. इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? We used to multiply it by something. Unit vector. यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी. तो इसको V by मैग्नीट्यूड ऑफ V से और मल्टीप्लाई कर देते थे. सो दैट वाज आवर आंसर. बस इससे AT आ जाएगा. डू इट. फाइंड AT वेक्टर. A vector is given, V vector is given, find dot product, find magnitude of V. सब आसान है, करो जल्दी बताओ. काव्या,
You tried this question? Sir, I just came. But I gave this question last class as homework. You people only asked for homework. I gave it as homework. Shitesh, Yes, sir. आ रहा है ये क्वेश्चन? नहीं आ रहा? कोई डाउट भी नहीं पूछ रहा, आंसर भी नहीं बता रहा. यशमित, you got this question? नहीं आ रहा सर. This statement is clear to you और ये statement में प्रॉब्लम है? सर स्टेटमेंट समझ में आ गई. Okay. Yashmit, you got this statement? नहीं सर. तो पूछो ना, पूछोगे ना फिर कैसे चलेगा? See, velocity is always tangential. This do you agree? Everybody agrees to this ना? Velocity is Yes tangential. sir. Acceleration कहाँ भी हो सकता है? Why? There are two components of acceleration. T and N. Right? AT and AN. Suppose acceleration इधर है. So we can resolve this vector A, this is vector A, huh? Along the tangent and along the normal. इसका जो component normal के along आता है, that is known as AN, and जो tangent के along आता है, that is what we say is AT. So AT and AN are what? Component of acceleration along the tangent and along the normal. Everybody agree to this? Yes sir. नाम में लिखा हुआ है tangential acceleration is component of acceleration acting along tangent, component of acceleration acting along normal. बोलो सब लोग बोलो. आशु, आया समझ में? You have revised it? So चलो, जिसने नहीं पढ़ा पढ़ो और पूछो मेरे से, नहीं आता तो. See, component of A vector along the tangent, that is along velocity. So A vector is this is AT, this is AN. So can I read AT as component of A vector on V vector? Can I read it like this? तो वही चीज तो लिखी ना, component of A vector along AT. Oh, sorry, Yes. along V. हाँ, तो component of A vector on V vector. ये तो 10 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल के मैंने पढ़ाया था आपको. प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर या ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ये सिखाया था मैंने. ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज व्हाट? A dot B by magnitude of B. ये स्केलर प्रोजेक्शन था. मैंने वेक्टर प्रोजेक्शन भी सिखाया था. A dot B by magnitude of B upon magnitude of B the whole square. ये सब सिखाया हुआ है. ओके. तो अभी आप डॉट प्रोडक्ट तो निकालना जानते हो ना, कि डॉट प्रोडक्ट भी भूल गए? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स. तो A dot B कितना हो गया? व्हाट इज A dot B? 3 2s are 6 minus 4 3s are 12 minus 6. मैग्नीट्यूड ऑफ V कितना हो गया? रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 आ गया. Therefore AT vector is A dot V, that is minus 6 into V vector 3i plus 4j upon 5 का स्क्वायर 25. That is minus 18 by 25i minus 24 by 25j. चाहे तो इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो. minus 0.72i minus 0.96j. This is AT vector. This is tangential component of linear acceleration, that is AT vector. Is it clear? Yes sir. No. AN vector कैसे आएगा? How will you find AN vector? How will you find AN vector? अब इसमें मेरा मोरल डाउन मत करो. AT मिल गया, A मिल गया, अभी AN तो बता दो. How will you find AN vector? Sir, A square is equal to 8 square plus
n स्क्वायर वाला फॉर्मूला प्लस लगा। ए एन स्क्वायर, लेकिन उससे वेक्टर फॉर्म नहीं मिलेगा। मैं वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा हूँ आपसे, उससे मिल जाएगा आपको, ए एन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, दैट्स ट्रू। ए टी का मैग्नीट्यूड यहां से मिल जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड यहां से मिल जाएगा, ए एन का मैग्नीट्यूड है, मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए। ए टी वेक्टर प्लस ए एन वेक्टर, यही तो ए वेक्टर है। डर जाते हो? हाँ सर। मैं जब बोल रहा हूँ ए टी एंड ए एन आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए, मतलब ए टी और ए एन को तो वेक्टोरियली ऐड करोगे तो ए आएगा ना। सो ए टी वेक्टर प्लस ए एन वेक्टर इज ए वेक्टर। भाई दो कंपोनेंट है वो, डरो मत। ए टी एंड ए एन आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, राइट? ए टी वेक्टर एंड ए एन वेक्टर आर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। हो गया बात करना। तो ए एन वेक्टर क्या हो गया? ए एन वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस ए टी वेक्टर। ए वेक्टर पहले से पता है, 2i माइनस 3j। एटी, एटी और निकाल लिया आपने, 0.72i माइनस 0.96j। सब्ट्रैक्ट 2 माइनस माइनस 2.72i माइनस 3 प्लस माइनस 2.04j। अच्छा अच्छा, so this is how we find an vector. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So see, 2D in general आपको मतलब 2D के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब इसमें आपके कवर हो गए। मतलब प्रीवियस जो एग्जांपल्स मैंने दिए थे और ये एग्जांपल्स कुछ हैं, इनमें आपके सारे एग्जांपल्स कवर हो गए। चाहिए तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन तो 2-4 क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ, मतलब घुमा घुमा के, और वी कैन स्टार्ट विद द मेन कॉन्सेप्ट। मतलब एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिए कि वेलोसिटी डिफाइन कैसे करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैसे रिलेट करना है, राइट? एक फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, एवरेज कैसे निकालना है, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मतलब सारी चीजें आपने सीख ली हैं, अब सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और स्पेशल केसेस पढ़ने हैं। तो चाहिए तो मैं और अगर आपको कुछ डिस्कशंस करने हैं अलग अलग टाइप के तो क्वेश्चंस और करा देता हूँ। हेलो, करा दो। चलो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये भी जेई का क्वेश्चन ही था शायद से, अभी तो किसी बुक में देखा था मैंने। एक पार्टिकल है, एक कर्व पाथ पे चल रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ कर्व along x-axis, sorry, curve in xy plane given by y equals to ax minus bx। ठीक है, एक कर्व दिया ax minus bx at t equals to 0, particle is at 0 0 9 लॉट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स इज इन्वॉल्व इन इट। ये जेई का ही क्वेश्चन है शायद से, तो मुझे वैसा याद है। हाँ, एक कर्व दिया हुआ y equals to ax minus bx square. Do you recognize this curve? This is x-axis and this is y-axis. Which curve this must be? कैसा कर्व होना चाहिए? 4-5 टाइप के कर्व्स बताए, 4 टाइप के कर्व्स बताए थे मैंने, 5 सॉरी। ये कौन सा कर्व होना चाहिए? हेलो, कोई है? सब पैराबोला होगा क्या? पैराबोला। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं आजकल? क्या वैभव ने भी बोलना बंद कर दिया? वैभव Yes, sir. रिवाइज नहीं कर रहा, रिवाइज नहीं कर रहा। काव्या
रिवाइज करो प्लीज रेगुलरली. नहीं आता तो मेरे से पूछो. आई विल एक्सप्लेन यू 10 times. This is parabola. What made you say that this is parabola? Answer is correct. बोलो चिन्मय, क्या सोच के बोला पैराबोला? डोंट टेल मी ऐसे बोल दिया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक तो सर्कल में भी था, क्वाड्रेटिक तो एलिप्स में भी था, क्वाड्रेटिक हाइपरबोला में भी था. इसमें एक का डिग्री 2 है, दूसरे का डिग्री 1 है. y के रिस्पेक्ट में डिग्री कितना है? 1 है. हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2. ऐसे केस में हमेशा पैराबोला होता था. ओके ओके सर. हाँ. अब बताओ, चलो ये तो पक्का पैराबोला है. ये अपसाइडेड पैराबोला है, डाउन साइडेड पैराबोला है? A and B are positive. This is down-sided parabola. If you take all the terms of x on one side, keeping y as a y positive on the other side. अगर y दूसरे साइड कोएफिशिएंट प्लस रखो और x के टर्म्स को x है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव आया तो डाउन साइडेड है. तो ये पैराबोला डाउन साइडेड आने वाला है. राइट. फिर कैन यू टेल मी ये x एक्सिस को कहां पे कट करता है? Where does this curve cuts? डाउन साइड कैसे? जैसे 2x minus 3y square plus 7x minus 8 plus 7y minus 2 is equal to 0. ऐसा है. y स्क्वायर किसका है? y का है. तो y के टर्म्स को एक साइड रखो, 3y square minus 7y हो गया. x के टर्म्स को दूसरा साइड रखो, 2x minus 2. ठीक है. y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दूसरा साइड रख के x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है. राइट. ये राइट साइडेड पैराबोला है. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax राइट साइडेड होता था. x का स्क्वायर और उधर y पॉजिटिव 4ay ये अप साइडेड होता था. y का स्क्वायर एंड माइनस 4ax ये लेफ्ट साइडेड होता था. x का स्क्वायर एंड माइनस 4ay ये डाउन साइडेड होता था. जो मैथ स्टूडेंट्स हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है. ये डिटेल्ड में चैप्टर है, वहां पे आप बहुत अच्छे से सीख लोगे. ये सब मैं छोटा सा लिख के दे रहा हूँ ना. मैथ्स में कोनिक सेक्शंस करके चैप्टर है, उसमें बहुत डिटेल में. तो इसके लिए बहुत डरने की जरूरत नहीं. नॉन मैथ स्टूडेंट्स को ये अभी याद रखना है. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay. तो y स्क्वायर y पे स्क्वायर था, तो y के टर्म्स को एक साइड रखो, रिमेनिंग ऑन द अदर साइड. ठीक है. तो मैंने y स्क्वायर माइनस 7y लिया. अभी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखो और x का भी पॉजिटिव है दूसरे साइड, तो ये राइट साइडेड है. राइट. अगर यहाँ पे माइनस 2x ये प्लस 3y स्क्वायर होता है, तो 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2x लिखना पड़ता मुझे, माइनस 2x प्लस 2. तो ये लेफ्ट साइडेड हो जाता है. अभी यहाँ पे क्या लिखा था? y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर. तो x स्क्वायर के टर्म्स को एक साइड रखो, सॉरी x के टर्म्स में bx स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू माइनस y, और y के उधर लेके जाओ. तो x स्क्वायर पॉजिटिव रख के y नेगेटिव आ रहा है ना. x स्क्वायर और माइनस y, x स्क्वायर और माइनस y डाउन साइडेड पैराबोला. ठीक है, समझा? सर 4 स्पेशल पैराबोलास हमारे सिलेबस में होते हैं. राइट साइडेड, अप साइड, लेफ्ट साइड, डाउन साइड. y का स्क्वायर है, x का नहीं, तो या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा. x का स्क्वायर है, y का नहीं, तो अप साइड, डाउन साइड. और ये भी मैं सब बता सकता हूँ आपको, लेकिन अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा. अगर कभी डर लगे तो मेरे को बोलना, वो नोट करके रखना, किसी दिन मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. बट ऑल ऑफ यू हैव टू नो दिस. मैथ्स, नॉन मैथ्स, ऑल स्टूडेंट्स हैव टू रिमेंबर दिस. फिजिक्स में कई चैप्टर में काम आएगा, वो छोड़ दो. केमिस्ट्री में भी काम आएगा, वो छोड़, 12th में भी भर भर के काम आएगा. जहां पे ग्राफ आएगा वहां पे ये सब आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए. नीट में भी वो क्वेश्चंस आते हैं, जेई में भी क्वेश्चंस आते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो ये है कैसा पैराबोला? डाउन साइडेड पैराबोला. कैन यू गेस एट विच पॉइंट्स दिस कर्व कट्स x एक्सिस? A. A? No. Where does this curve cuts x axis?
सर x की जगह पे 0 डाल के देखे क्या? नहीं, y की जगह सर 0 डालना है ना. इट कट्स x एक्सेस. x एक्सेस पे y कोऑर्डिनेट 0. पुट y इक्वल्स टू 0. ax माइनस b, x कॉमन a माइनस bx इज इक्वल टू 0. तो x इज 0 और a माइनस bx इज 0. तो x इज a बाय b. दो पॉइंट्स पे कट करता है. x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू a बाय b. ये कर्व कुछ ऐसा है, ऐसा कर्व. अगर किसी ने गलती से चैप्टर पूरा पढ़ रखा है तो पहचान जाएगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है. बट जेई में ऐसा प्रोजेक्टाइल नहीं पूछा था, ऐसा एक इक्वेशन लिख दिया था, बोला था अब इसके आंसर्स बताओ. लीव इट, प्रोजेक्टाइल वर्ड ही निकाल दो दिमाग से, छोड़ो. ये कर्व दिया था, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर. नहीं है डाउट. ये कर्व हो गया. इस कर्व को आइडेंटिफाई करने बोला तो आपने बोला पैराबोला. ठीक है. अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड. यू सेड डाउन साइड. ठीक. मैंने बोला ये एक्स एक्सिस को कट कहां करता है? तो जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना. वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0. ट्रू. Yes, sir. Y coordinate of any point on x axis is 0. तो I put x y equals to 0. ax minus bx का 0 हो गया. x common a minus bx is 0. x का वैल्यू 0, a minus bx का वैल्यू, x का वैल्यू a by b. मतलब x equals to 0 पे और x equals to a by b पे, ये दो पॉइंट्स पे वो कट करता है. सर एक और दो ना ऐसा क्वेश्चन. ये अभी क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इसमें तो बहुत सारे सब क्वेश्चंस बाकी थे. एक्सप्लेन करता हूँ ना अभी. आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ सर. ओके. तो ये हो गया पहला क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन पूछा था फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस अगेन. तो इसमें तो मैंने फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाया. मैंने तो सीधा सीधा क्या कॉन्सेप्ट लगाया? मैथ्स का. मैंने कर्व आइडेंटिफाई किया, हाँ. डाउन साइड, हाँ. एक्स एक्सिस कहां कट करेगा? 0 डाल दिया. ये हो गया. ठीक. फिर लिखा था नेम द पॉइंट एज ए. लेट द पॉइंट बी ए. लेट द पॉइंट बी पी लिख देता हूं. पी लिख देता हूं. Therefore, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? P का कोऑर्डिनेट हो गया 0 कॉमा a बाय b. एग्रीड. तो ये पॉइंट था 0 0, जहां से वो शुरू किया था उसमें देखो लिखा हुआ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 इज एट 0 0. फिर यहाँ पे दोबारा ऐसे घूम के यहाँ पे कट करके आता है. ये पॉइंट है a बाय b कॉमा 0. a बाय b कॉमा 0. ये कट करा है. ओके ना. अगला क्वेश्चन था, कहाँ रब करूं, ये कर रहे हो कॉपी? हो गया लिख के. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द पॉइंट वेयर y component of velocity is 0. सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का. फाइंड द पॉइंट नेम इट एज q where y component of velocity is 0. y component of velocity is 0. चलो सोचो कैसे होगा. मेरे पास सिर्फ कर्व दिया है. y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको 0 बताना है. हिंट दूं? हाँ सर. dy बाई dt होता है vy और dx बाई dt होता है vx. ये हिंट है आपके लिए. vy मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज dx. हिंट है, डिफरेंशिएट दिस. फिर सोचो आगे.
कोई नहीं कर रहा है, तो आज सर बोल भी नहीं रहा कोई। सर इसका आंसर प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से तो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा ना, मैक्सिमम हाइट। करेक्ट करेक्ट, क्यों? ये देखो ना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा होगा, टेंजेंशियल, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ इस सर, पॉइंट पे टेंजेंशियल, दोनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इस पॉइंट पे टेंजेंशियल, इसका बस एक्स एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट का कंपोनेंट है ही रहेगा। नहीं। हाँ, तो वही तो वो पॉइंट है, पर उसको ढूंढना कैसे है? अभी तो हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा नहीं है, और ये जेई में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल का रेफरेंस नहीं यूज किया था, सिर्फ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बना बना के पूछे थे। अल्टीमेटली ये क्या है? ये रेंज है, दिस इज रेंज ए बाई बी, हाँ सर। राइट? सो आपको वो पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। तो ये देखो, किसी एटलीस्ट एक दो लोगों से तो होना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं किया, मुझे अच्छा सा नहीं लगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, पूरा लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dt, a इज कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt माइनस b इज कांस्टेंट, स्क्वायर का हो गया 2x और x का हो गया dx बाय dt, ये बना vy, तो vy इज इक्वल टू a, ये हो गया bx माइनस 2bx bx। नाउ गिवन vy इज 0, vy की वैल्यू 0 डाल दो, vx आया उधर कॉमन, a माइनस 2bx, bx तो 0 हो नहीं सकता, या हो भी मुझे क्या करने का, मुझे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो a माइनस 2bx उस पॉइंट पे 0, तो उस पॉइंट पे x का वैल्यू a बाई 2b, उस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट a बाई 2b है। यस सर, समझा। समझा? हाँ सर। बहुत इंटरेस्टिंग लगे। देखो, ये a बाई बी है, ये 0 है, तो उसके मिड पॉइंट पे दिख ही रहा है सिमेट्री के हिसाब से, तो इन दोनों का मिड पॉइंट a बाई 2b, तो ये पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट a बाई 2b है, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? हाउ विल यू फाइंड y कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट? सर से सर 0 है ना? नो, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कहाँ 0 है? इधर 0 है ना, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कहाँ 0 है? हाँ सर। क्या हो गया? बहुत डिफिकल्ट लग रहे क्वेश्चंस, चलें अगले टॉपिक पे, इजी लगेगा फिर। सर पॉइंट निकालने में दिक्कत हो रही है बस। नहीं, आई अंडरस्टैंड, सी दैट इज पार्ट ऑफ मैथ्स। इक्वेशन ऑफ कर्व पता है, x की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो, y आ जाएगा। एट x इक्वल्स टू a बाई 2b, y कितना होगा? a इंटू a बाई 2b माइनस a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 2b माइनस a स्क्वायर बाई 4b, तो a स्क्वायर बाई 4b, y कोऑर्डिनेट आ गया a स्क्वायर बाई 4b। Is it clear? जी सर। Okay. अगला क्वेश्चन पूछा था, इस पॉइंट का नाम दिया Q, हाँ, ये पॉइंट का नाम दिया P, ये पॉइंट का नाम दिया Q, ये पॉइंट था ओरिजिन। आ रहा है समझ में? प्लीज रिस्पॉन्ड करो, बाकी लोग भी। हाँ सर। काव्या, ओके, आशु तो हैज मिस्ड, तो आशु को नहीं समझेगा जाना भी। मुस्कान, आ रहा है समझ में? सर्वेश, यस सर। ओके, शुभम, नहीं आ रहा बिल्कुल? सर वो एक्स वाला नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा। हाँ तो पूछो ना बेटा, मैं कोशिश करता हूँ ना। ठीक है, तुमने भी सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो कम समझेगा, बट समझेगा। सी, डिफरेंशिएशन याद है, 10th में पढ़ा था तुमने? हाँ सर। y इज इक्वल टू x, हाँ, तो